Good morning, everybody. I would like to introduce Mr. Rohit Kashyap. He is a founder of Maitri School of Entrepreneurship to deliver an expert webinar on Entrepreneurship 101 Zero to Startup, which we are organizing under the banner of our Department of Management Studies, Gitanjali Institute of Technical Studies. Before giving a brief intro, I just wanted to give some idea about Mr. Rohit. All the more than 100 plus participants we have today, or you will surprised to know that the age of Mr. Rohit is less than everybody who are in the audience side today in the webinar. He has only 18 years of age, but less age, rich experience, we can say the word will be fine for him because he is the person who was awarded the youngest entrepreneur of a country in the year of 2019 by Your Story and Times of India, youngest entrepreneur of our country in 2020, which is among the featured list of Google article. He is the startup mentor, he is the entrepreneur and the by nature as well as by heart, and startup mentor of Department of Science and Technology, Government of India. Many award, many recognition, Karamveer Chakra awardee, many things in your hand. I think there is no need of any more introduction because whatever awards he has got, they tell each and everything about Mr. Rohit. It has been predicted that when he'll be in the age of 25, he'll be among one of the best entrepreneurs in our country because in the less age, when he was in 17, he has started his own business where nobody think about their education, nobody knows that where they have to go. In that age, he has started his own enterprise. He has a many follower on many knowledge-based platform, and he always gives suggestion on entrepreneurship to many of the student and the entrepreneurs in our country. So with this, I really welcoming and I'm giving my special thank to Mr. Rohit to accept our invitation and give us there to guide on entrepreneurship to our students. And with this, I would like to invite our respected director sir to give away the welcome address and then officially initiate the today's webinar. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, Arvind. Thanks a lot. Am I audible and clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Good morning, everybody. So, friends, today indeed probably it's the day when we feel very extremely delighted, and with whatever Arvind has briefed about Mr. Rohit Kashyap. First of all, at the very outset, I would like to welcome Mr. Rohit Kashyap on the forum of GITS. We are extremely delighted to have a very young youth icon, youth entrepreneur, Rohit among us. First of all, Rohit, on behalf of Gitanjali family, I would like to congratulate you for your all great success, for the wonders which you have achieved in just a short age of 18. And it's very surprising and very encouraging also that with such a small age, you are contributing immensely, and your presence and your contributions shows, and it again gives me a confidence, and it again reascertains my belief that future of India is in safe hand. देश का जो भविष्य है वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है. आप जैसे जो युवा देश को जो लीड करेंगे आगे जाके, उसकी जो फाउंडेशन है that is very strong. So on behalf of Gitanjali family, I congratulate you for your success. And that's what I would like to advise to all the students, those who are here for this webinar, that you can't get
more inspiration, you can't be more inspired than anything else. Of your age, आप में से जितने हैं, I think आप सभी लोग शायद रोहित से एज में बड़े होंगे, but a person, a youth of 18 years is being involved into so much things. He is a founder. He is been adjudged as an youngest entrepreneur of India. What else you can want? What else you can dream for? What else you can aspire for? So congratulations. And as the today's scenario, it's always good to be an employer or employment generation rather than being an employee. And I'm sure Mr. Rohit, with his experience in the area of entrepreneurship, in the area of startup, is going to touch all these points. And as an entrepreneur, or as a student, or as a person who is aspiring to become an entrepreneur, the most important thing should be that you should be very curious. You should be very focused to your surrounding. कि आपके आसपास चल क्या रहा है, उसमें ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नाउ विद द चेंजिंग डायनेमिक सिनेरियो द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग. जस्ट यस्टरडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्क्रैप्ड 59 apps, those which were based at Chinese based app. So altogether a huge big market has all of a sudden has evolved, which has given a huge opportunity to all the technocrats, to all the students of management, engineering, art and commerce. And today knowledge has got no barrier. Gone are the days when we were thinking कि साहब ये technical app है तो it has to be developed only by a computer expert. No, a person from arts background, a person who has got the logical thinking can be into any discipline. So today world is all about interdisciplinary. When it comes to a startup, probably one of the most important thing is how you are going to pitch your idea. Because for pitching in front of any investor, in front of any agile investor or for funding agency, you get 2-3 minutes to pitch your idea. So in what way you are going to pitch, in what way you are going to formalize your content, what shall be the topics, what shall be the points or the areas which you need to cover into your that pitch, what shall be the points which shall be in your DPR. Make effective use of the session, ask those things, put your queries to Mr. Rohit. He is the best person to respond all those things. I'm not going to take much of the time. I'm sure students, those who have joined today, must be very excited and delighted to listen him. Make the best use of this session. Trust me, you cannot get more inspiration than from somebody else rather than having presence of Mr. Rohit, because वो आपके अपने बीच का है. He is somebody who is representing you. He is somebody who is representing youth, a youth icon, a future leader, a nation builder. So congratulations once again, Mr. Rohit. We wish you best wishes and good luck for all your future endeavor. Thank you. Over to you, Arvind. Yes. Thanks a lot, sir. Thank you very much for your motivating word. And before inviting our speaker among us, I would like to thanks to our one of the student from mechanical engineering, Arjun Chaudhary, Manish Chaudhary, because he is the person who has told me that, sir, somebody in the age of 18, he has awarded at a many laurels and the awards, and he can be very beneficial for our student to motivate in the field of entrepreneurship. And he was the candidate who has introduced Mr. Rohit to me, and because of him, today Mr. Rohit is among us. So I definitely, it's a honor for Manish that because of him, today we are organizing this session. So thanks to Manish Chaudhary, I think he also will be there in the today's webinar. And with this, I now invite our expert for today's webinar, Mr. Rohit, to take ahead this session and motivate our student in the field of entrepreneurship. I think I have got the thank you from Manish Chaudhary also. It's a good to see Manish here, and good to invite and for your help to institute. Thank you. Yes, Mr. Rohit, now over to you. I think today is the forum is yours.
or you are invited for the discussion. Thank you. I think you can hear me. Yeah. Yeah, is I'm audible to Yeah, everyone? yeah. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा ना कि इधर थोड़ा नेटवर्क का इशू है. इट्स रेनिंग सिंस नाइट हियर, सो दैट्स वाई थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, No problem at all. yeah, first of all, thank you everyone for joining us. Thank you Arvind sir for inviting me, and thank you director sir, and thank you Manish. Actually Manish texted me few days back कि आप एक सेशन लोगे, तो मैंने कहा ओके मैं ले सकता हूँ. तो फिर अरविंद सर से हमारी कोऑर्डिनेशन हुई और अरविंद सर आस्क्ड मी टू टेक सेशन ऑन ट्यूसडे टुडे. ओके, थोड़ा सा मिस्टर रोहित, योर वॉइस इज नॉट प्रॉपरली ऑडिबल. थोड़ा सा कम आ रही थी, बीच में अच्छी आ रही थी. अब आ हेलो, रही है? हाँ अभी ठीक आ रही. ओके ओके, सो शैल वी बिगिन? Possible for you to start the video, so it will be nice for everybody to see you also, because I think might be there will be the network issues, but it will be nice if you can do it. Okay, now because at least somebody everybody has to see you, that the 18 year of entrepreneur is interacting with us, so it will nice to see you, Mr. Rohit. ओके, सो मैं इस पूरे सेशन में कोई पीपीटी या कोई भी प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करना चाहता हूँ. आई वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, बिकॉज पीपीटी वाले सेशंस इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड वेरियस प्लेटफॉर्म, और जो भी हमारे मैत्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो. बट यहाँ पे आने का मेरा ये मतलब है ना कि यहाँ पे मैं आप सभी से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी के जो भी डाउट्स है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, बिकॉज हमारा ये सेशन है ना स्टार्टअप 1-on-1. व्हाट इट मींस स्टार्टअप 1-on-1 कि अब जीरो स्टेप से, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हियर इज अ चांस टू ग्रैब सम आइडिया व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू मेक स्टार्ट करना चाहते हो तो अवार्ड्स के लिए या प्लेटफॉर्म कोई भी ओके, लाइक हेलो, हाँ मिस्टर रोहित, आई थिंक इफ यू कैन हियर मी, क्योंकि वो वीडियो की वजह से शायद आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है अभी. आवाज नेटवर्क तो आपके बाद नहीं, वीडियो ऑफ कर लीजिए, सो दैट आई थिंक एटलीस्ट वी कैन हियर योर वॉइस, बिकॉज वॉइस इज नॉट perfectly audible, because you might be facing the network issues. Hello. is my voice is completely audible now? Now it is audible. तो मैं ये प्लेटफॉर्म के रिक्वेजिशन में स्टार्ट करना चाहता हूँ. डोंट स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ तक हम आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड. ओके, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड के बारे में पता था, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पता था. देन आई मेट अ एंटरप्रेन्योर लाइक हु इन्वेंटेड फर्स्ट एंड वॉच. हेलो, हाँ मिस्टर रोहित, अभी भी आवाज आपका ब्रेक हो रहा है थोड़ा, बहुत ज्यादा. इट इज नॉट प्रॉपरली ऑडिबल. हेलो, गिव मी अ सेकंड. ओके, हाँ गिव मी अ सेकंड.
I request to all the audience that please bear with us because he is having some network issues. I think he has joined again. Yeah, अब ऑडिबल है? हाँ, अभी ठीक है. Okay. Actually, network issue है इधर. Okay. So let's start. Sound is clear? Now it's clear. Okay. So if you are starting, my request to all of students, if you are starting just because of awards or recognition, so don't start it. Okay. We have started like 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था entrepreneurship के बारे में, means just interactions entrepreneurship के बारे में मेरा हुआ. Okay. तो मैंने एक entrepreneurship मेरी one-on-one meeting हुई. He's like a investor and an entrepreneur. He invented world first Android watch. Okay. So उनसे मैंने मिला related to a idea. मैं उनसे मिला और he just asked me कि है ना do you have experience in this field because आप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हो. हम लोगों का जो प्रोडक्ट था मैन्युफैक्चरिंग का था, तो उन्होंने पूछा कि है ना आपका एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपके पास कनेक्शंस हैं. उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. वी सेड नो. ओके. तो जस्ट उन्होंने एक है ना सिर्फ एक सिंपल सा आंसर दिया, डोंट गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट, गो फॉर सॉफ्टवेयर्स. अभी सॉफ्टवेयर का क्रेज उस समय स्टार्टिंग था, कोडिंग एप्स का है ना एक तरह से ट्रेंड था. देयर आर मेनी एप्स और मेनी प्लेटफॉर्म जस्ट स्टार्टेड बैक इन दोज इयर्स. ओके. So he just told me just start with some certain softwares, certain platform जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, और देन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में है ना एक्सपीरियंस एक बार बना लेते हो, देन है ना आप है ना क्या कहते हैं कि देन यू कैन गो इन एनी फील्ड. सो मैंने उनके है ना जो भी उनके सजेशन थे उनको क्लियरली है ना लिया. ओके. तो वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके. फिर हम लोगों का स्टार्टअप लाइक वी हैव रीच्ड एट सर्टेन स्टेज, वी गॉट इन्वेस्टमेंट, देन इट्स ऑल की एक प्रोसेस में जाने लगा. फिर 2018 में आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक Quora, लाइक यूट्यूब एंड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया. तो सबके पास सिर्फ एक क्वेश्चन था कि स्टार्ट कैसे करें. दे हैव आइडिया, some of them have funding also, some of them have team, some of them have different types of resources. उनके पास सारी चीज बहुत लोगों के पास था, but they don't know how to get started. Okay. So उस टाइम था कि है ना just a normal consultant I just की call पे या normal video Skype पे I just told them how to get started. बट एट सर्टेन टाइम मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि है ना बहुत लोगों के पास सारा चीज सारा रिसोर्सेज होने के बाद भी दे डोंट नो हाउ टू गेट एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग. ओके. So we started a platform that we call Maitri School of Entrepreneurship. यहाँ पे मेत्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ स्टार्टअप्स को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को हर मंथ सिलेक्ट करते हैं, और देन क्या होता है उनका है ना पूरे मंथ में हम लोग है ना 0 to स्टार्टअप का है ना हम लोग उनको मेंटोर करते हैं. Like we have mentors like Yuvraj Bharadwaj and Yashraj Bharadwaj. They are like they are youngest nominee of Padam Shri, and like their company is valued over 350 crores around, and they are just 20. Okay. We have forced 30 under 30 like Shashank Kumar, who started you can say multi-million-dollar company Dehat. आप लोग अगर बिहार या पटना से रिलेट करते हो कोई भी, तो यू मस्ट बी नो अबाउट देहात. इट इज अ एग्री टेक स्टार्टअप, रिसेंटली गॉट फंडिंग. उनको रिसेंटली फंडिंग मिली 100 करोड़ के आसपास की. ओके. सो दैट टाइप ऑफ मेंटोर्स are on our platform, जो कि है ना 1-on-1 मेंटोरशिप देते हैं फ्रॉम 0 to स्टार्टअप. एंड वी डोंट गिव कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग कुछ नहीं करते. हम लोग सिर्फ है ना बताते हैं कि अगर आपके पास आइडिया है तो हम लोग है ना मार्केट रिसर्च. फर्स्ट थिंग क्या होता है, आपके पास अगर कुछ आइडिया है ना उसका है ना आप मार्केट रिसर्च कीजिए, अपने आइडिया अपने मार्केट को समझिए कि मार्केट ग्रो भी करने वाला है कि नहीं, 10 साल में इस मार्केट का कोई पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं. ओके. अगर इस मार्केट अगर ग्रो करने वाला है या आपका प्रोडक्ट मार्केट के सुटेबल है, देन गो फॉर दैट प्रोडक्ट. ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो कि आज आपको लगेगा कि ये मार्केट में चल जाएगा. ओके. बट होता है कि 10 साल के बाद इसका है ना कोई मार्केट ही नहीं रहे, या आप कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं. तो हम लोगों को आज
आजकल जो भी आप सक्सेसफुल कंपनी देख रहे हैं, स्विगी देख लो, बाइजू देख लो, या आप ओला देख लो, वो सब बैक 10 इयर्स बैक स्टार्ट हुई है। उन्होंने आज का मार्केट को समझा है कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। 10 साल के बाद है ना डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है। 10 साल के बाद लोग है ना कैब ऑनलाइन बुक करेंगे। 10 साल के बाद कुछ होने वाला है। तो क्या कहते हैं कि आप जब भी स्टार्टअप करो ना अपने आइडिया के बारे में, तो सबसे पहले है ना रिसर्च करो कि फ्यूचर में उस आइडिया का या उस प्रोडक्ट का कोई मार्केट है भी कि नहीं, कितना ग्रोथ है। तो पहला चीज हम लोग सिखाते हैं कि मार्केट रिसर्च करना। सेकेंड चीज क्या करते हैं, बिजनेस मॉडल बनाना, कि आपका बिजनेस कैसे एग्जैक्टली है ना वर्क करेगा, कैसे आप है ना फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, कैसे मान के चलो कि है ना अगर आप अपनी बूटस्ट्रैप ही कर रहे हो 1 लाख रुपीज से या 10,000 वट एवर अमाउंट यू हैव, तो आप उस चीज को है ना कैसे आप अपने 10,000 की बजट को कैसे है ना अच्छी मतलब सही जगह पे है ना इन्वेस्ट करोगे। इवन इफ यू आर पेइंग अ डेटा बिल देन यू हैव टू राइट अबाउट इट। ओके, सो दैट्स कम इन फाइनेंशियल मॉडल एंड बिजनेस मॉडल। ओके, सो बिजनेस मॉडल बनाना हम लोग सिखाते हैं, मार्केट रिसर्च करवाते हैं, टीम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप टीम के लिए भी जा रहे हो तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है ना, आज क्या होता है कि आज आपके पास आइडिया है, आपके पास रिसोर्स है, तो आप कोई भी अपने फ्रेंड को है ना या रिलेटिव को इनिशिएट कर देते हो कि मेरे साथ आप स्टार्टअप स्टार्ट करो। बट होता क्या है 6 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद क्या होता है ना, उसका आइडिया या उसका है ना इंटरेस्ट आपके स्टार्टअप में लैक होना स्टार्ट हो जाता है, या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से आप कैसे बचो, कैसे एक सर्टेन है ना सुटेबल पर्सन अपने स्टार्टअप के लिए कैसे ढूंढो, तो वो सारा चीज है ना हम लोग बताते हैं। या कौन से लीगैलिटी का है ना आप किस टाइप के लीगल है ना प्रोसीजर अपना सकते हो कि आपको आगे जाके है ना स्टार्टअप में प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो क्या होता है ना कि आज आप अपने फ्रेंड्स को अपना स्टार्टअप पार्टनर बना लोगे या अपने जो भी रिलेटिव को बना लोगे, बाद में कॉन्फ्लिक्ट आता है और आपका है ना पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होता है। तो डोंट स्टार्ट विथ योर फ्रेंड और डोंट स्टार्ट विथ योर सर्टेन रिलेटिव इफ दे डोंट हैव कोऑर्डिनेशन विथ यू इन स्टार्टअप फील्ड। एक पर्सनल लाइफ की कोऑर्डिनेशन अलग बात है, एक बिजनेस की क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन अलग बात है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 2015-16 में तो हम लोगों को ये सारी है ना प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो हमें लगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। तो ये सब कुछ आप कह सकते हो जीरो लेवल की चीज होती है कि टीम कैसे फाइंड करें, बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं, क्या कहते हैं मार्केट रिसर्च कैसे करें। तो ये सारा चीज है ना हम लोग सिखाते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट मैत्री स्कूल। और एट सर्टेन की हम लोगों ने बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अब तक मेंटोर एंड गाइड करके दिया है, जिसमें से कुछ बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी निकले हैं जिनको रिसेंटली फंडिंग्स भी मिली है। तो उस टाइप के स्टार्टअप्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक देयर इज माय स्टूडेंट हु स्टार्टेड अ medtech स्टार्टअप। ओके, सो ही गॉट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम रिसेंटली आया था जो एमएसएमई डिपार्टमेंट का कि 15 या 20 लाख के अबाउट इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको वहां से फंडिंग मिली। तो दैट्स अ थिंग। और इवन कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप मान के चलिए कि हर स्टूडेंट्स के पास या हर लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मैन के बारे में पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हर लोग के पास पैसा नहीं होता है कि है ना वो एक बिजनेस को बढ़ा सके या एक सर्टेन लेवल पे पहुंच सके। लेकिन फिर भी वो वहां पे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स के बारे में पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में पता है। तो हम लोग ये भी सिखाते हैं कि अगर मान के चलिए कि कुछ आपका सर्टेन बिजनेस है जो कि आप गवर्नमेंट की हेल्प से कर सकते हो, ओके, तो गवर्नमेंट उस चीज में आपको इजिली फंडिंग इवन एट मॉडल पे विदाउट किसी है ना आप कह सकते हो कि विदाउट किसी है ना आपके सिक्योरिटी के आपको है ना फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। तो वो लोन्स, वो फंडिंग, वो बिजनेस की स्कीम्स लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए किस डिपार्टमेंट को इनिशिएट करना है, कैसे करना है, कैसे मॉडल सबमिट करना है, तो सारा चीज हम लोग बताते हैं। इवन एट आपका है ना स्टार्टअप है ना सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आपको स्केल करने पे आप बूस्ट्रैप तक पहुंच गए, 100 कस्टमर के साथ पहुंच गए, आपके पास 1 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज है, आप 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर, 10,000 कस्टमर के पास पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप है ना उसके बाद स्केल नहीं कर पाते हो, कि आप अपने पैसों से स्केल नहीं कर पाते, यू नीड मोर मनी। तो आप क्या करते हो कि है ना इन्वेस्टर्स को है ना इनिशिएट करना स्टार्ट करते हो। इन्वेस्टर जब भी पैसा देता है वो स्केल करने के लिए देता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कम केस में देता है। ओके,
तो क्या कहते हैं कि फिर आप है ना उसको अपना मॉडल दिखाओगे कि कैसे हम लोग स्किल करने वाले, कैसे है ना हमारा जो मॉडल है कि हम लोग अभी 10,000 कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट सर्विंग 1 लाख कस्टमर। ओके, सो 1 लाख कस्टमर को हमको सर्व करना है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, मेरे को 10 करोड़ चाहिए या 100 करोड़ चाहिए, वट एवर अमाउंट चाहिए। तो वो कैसे आपको इनिशिएट करना है, कैसे फंडिंग उठाना है, किस टाइप की लीगैलिटी उसमें यूज होती है, या आप कह सकते हो कि इवन आपको क्या होता है कि यू डोंट गो फॉर कि फंडिंग के लिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो कि है ना मेरे को 10 करोड़ का फंडिंग चाहिए या 10 लाख का फंडिंग चाहिए। यू हैव प्रॉपर आप कह सकते हो प्रॉपर है ना टर्म्स एंड कंडीशन, या प्रॉपर आप कह सकते हो कि प्लानिंग रहनी चाहिए कि है ना आप कैसे वो 10 लाख रुपीज, अगर मैं मान के चलो एज अ इन्वेस्टर, अगर आप मेरे पास आते हो कि आपने मेरे को कहा रोहित मेरे पास एक आइडिया है या मेरा बिजनेस एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच चुका है, तो मैं आपको है ना क्या कहते हैं कि मैं आपको इतने % इक्विटी दूंगा और मेरे को है ना 10 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज वॉट एवर अमाउंट मेरे को फंडिंग में चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा ना, अगर मान के चलो कि मैं 5 लाख रुपीज अभी के अभी दूं, तो आप कल से अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे? तो बहुत लोगों के पास वो प्रॉपर मॉडल नहीं होता। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं ना जो कि इसलिए फेल हो गए ना। आप स्नैपडील का केस स्टडी जाके पढ़ो, स्नैपडील क्यों फेल हुई। स्नैपडील है ना फेल होने का सबसे बड़ा कारण था कि है ना ओवर फंडेड स्टार्टअप हो गई। ओवर फंडिंग का मतलब क्या हो गया कि उसको 1 रुपए की जरूरत थी, उन्होंने 2 रुपए या 3 रुपए रेज कर लिया, और जब वो 2-3 रुपया रेज किया ना तो उसमें क्या था कि उनके पास प्रॉपर मॉडल या प्रॉपर प्लानिंग नहीं था कि है ना वो 2-3 रुपीज है ना वो सही जगह इन्वेस्ट कर सके। उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट किया, और उसके कारण से है ना उनका है ना क्या कहते हैं कि डेली फाइनेंस में दिक्कत आई। दैट्स वाई उनका है ना वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली लो हो गया। तो दैट्स द थिंग, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल जाता है फिर भी फेल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है कि है ना मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, कैसे इन्वेस्ट करूंगा, कितने टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट का ये सारा चीज भी होता है कि आप है ना प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर है ना क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ कि है ना कब है ना आपको इन्वेस्ट कितने पैसे का जरूरत है, किस किस चीज में आपको पैसे चाहिए, कितने टाइम फ्रेम पे आप है ना वो पैसा खर्च करोगे। बिकॉज मनी कम्स विथ टाइम। आपको है ना अगर कोई है ना 1 करोड़ रुपीज देगा, दे विल से यू कि है ना मेरे को ये 3 मंथ्स के अंदर में इन्वेस्टेड चाहिए। आप जहाँ जो भी चीज में करना चाहते हो जस्ट इन्वेस्ट इन 3 मंथ्स। इवन आप अगर मान के चलो कि अब गवर्नमेंट को इनिशिएट करते हो, स्टार्टअप बिहार में हमारे थ्रू बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, तो आई नो कि वहां पे 10 लाख रुपीज की फंडिंग मिलती है स्टार्टअप बिहार में। तो 10 लाख रुपीज वो एक बार में 10 लाख रुपीज नहीं देते। फर्स्ट स्टेप में आपको 2.5 लाख देंगे, सेकेंड स्टेप में 5 लाख देंगे, फिर 2.5 लाख देंगे। अगर आप 2.5 लाख पहले तो फिर सेकेंड स्टेप में है ना पैसा वो 5 लाख देते हैं, फिर थर्ड स्टेप में पैसा देते हैं। दे विल सी कि है ना आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर है ना आपको सेम चीज करते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कितने टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करोगे। तो ये सारा चीज होता है। तो ये सब हम लोग मैत्री स्कूल में बिल्कुल 0 लेवल की चीज होती है, जिनको जो आप कह सकते हो कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, दे मस्ट नो अबाउट इट। ओके, सो दैट्स अ थिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट मैत्री। और इसको आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म ने रिकॉग्नाइज किया कि हम लोग स्टार्टअप बिल्डिंग का एक कह सकते हो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कि हम लोग कुछ अच्छे स्टार्टअप्स को ट्रेन किए हैं या एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो दैट्स अ थिंग। और इट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज बहुत लोगों के पास आइडिया डिफरेंट टाइप्स। आप अगर कॉलेज में चले जाओ, अपने क्लास में चले जाओ, यू विल वॉच की है ना हर कोई के पास लगभग 50 में से 2-3 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास स्टार्टअप आइडिया, बट दे डोंट नो। बहुत लोगों के पास फंडिंग की दिक्कत आ रही होगी, बहुत लोगों के पास टीमिंग की दिक्कत आ रही होगी, बहुत लोगों के पास है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वही चीज है ना मैत्री स्कूल आप कह सकते हो सॉल्व कर रहे हैं। एट मार्केट, फ्रॉम मार्केट रिसर्च टू launching a product, we help at even reaching in funds, even getting government scheme, even incubation। तो सारा चीज पे हम लोग हेल्प करते हैं। इट इज अ 0 लेवल प्रॉब्लम ऑफ स्टार्ट एंड तो दैट्स ऑल अबाउट मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स ऑल अबाउट अस कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
और नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर सेशन। ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएं। आपकी जो पर्सनल क्वेश्चन है, यू शेयर योर पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल प्रॉब्लम, एंड आई विल गाइड यू कि कैसे है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे आप है ना क्या कहते हैं इनिशिएट कर सकते हैं स्टार्टअप। Thank you, Mr. Rohit. I think it will be some more motivating if you can share your journey among all the participants. That how you started, how you got these kind of recognition, how these things came into your mind, and how your journey started, and now you are at this position. So how the things move on, then we can take a question answer, so that it will be motivating for everybody, that in the age of because what age you have, nobody think about the education, or you have thought about the entrepreneurship, which is somehow imaginary, or we can say somehow very difficult for a common human being, right? Yeah. 18 age, it means almost in the age of 18 everybody is at either they are on 12th, or they might be on first year or second year. So in that age you have thought about building an entrepreneurship. You get recognition, how you got the recognition, how you got that platform where your name came into the picture. So out of the Patna boy, how they you reach at a national level. So these kind of things, if you will explain among the crowd, it will be very motivating for everybody. Then we will take the question answer. ओके सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हो कि इन एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड ऐसा नहीं है कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2015, और ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेटिव स्टार्टअप है ना उस 9th या 8th में स्टार्ट किया। आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस होल लाइफ। आपने बहुत लोगों ने है ना क्या कहते हैं आप लोग में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा कि यू स्टार्ट सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर स्कूल। आप कोई भी प्रोडक्ट इवन मान के चलो हमारे टाइम क्या था, PSP जो नया नया वो PSP वाला गेम आता था, चाइनीज प्रोडक्ट PSP गेमिंग प्रोडक्ट। ओके सो मैंने बैक इन आप कह सकते हो 4-5 आई स्टार्टेड कि मेरे को बिजनेस ही में कुछ करना था शुरुआत से। तो हम लोगों ने है ना वहां से स्टार्ट किया कि वी स्टार्टेड की है ना हम लोग होलसेल पे है ना PSP ला के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से वी स्टार्टेड सेलिंग इन स्कूल्स। ओके इसके लिए आई गॉट स्लैप फ्रॉम वन ऑफ टीचर ऑल्सो कि आप है ना स्कूल में बिजनेस कर रहे हो ऐसा। लेकिन हम लोगों का ऐसा था कि है ना वी नीड टू डू समथिंग इन बिजनेस ओनली। हम लोगों का 1-2 फ्रेंड्स का ग्रुप था जिनको बिजनेस में ही कुछ करना था, और वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन टेक्स कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी में ही कुछ करना था। then different class by class we start doing something। okay so फिर 9th में मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला कि है ना एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टार्टअप के बारे में पता चला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ उस समय है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू स्टार्टअप्स आए थे जो बहुत इनोवेटिव काम कर रहे थे। ओके तो मेरे को एक एंटरप्रेन्योर के बारे में पता चला जो कि पटना ही से थे, एंड ही हैड डिड समथिंग आप कह सकते हो बहुत अच्छा उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में था। ही हैड आल्सो कि उनको है ना फोर्ब्स 30 यू मस्ट बी नो अबाउट लिस्ट ऑफ फोर्ब्स की है ना वो 30 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट ऑल ओवर द आप कह सकते हो वर्ल्ड, इंडिया या एशिया लेवल पे हर ईयर निकालते हैं। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या स्टार्टअप वाले होते हैं उनको है ना उस लिस्ट में डाला जाता है, टॉप 30 स्टार्टअप्स या टॉप 30 एंटरप्रेन्योर्स को। ओके सो हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने हम लोगों को है ना मेंटोर किया कि है ना क्या कहते हैं कि यू जस्ट गो फॉर दिस। ओके सो हम लोगों ने है ना अपनी आइडिया को उनके साथ शेयर किया। तो वी स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म कि हम लोगों ने है ना फूड टेक स्टार्टअप स्टार्ट किया जस्ट लाइक स्विगी। ओके वी वांट टू बी स्विगी ऑफ बिहार एंड वी वांट टू बी स्विगी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, बिकॉज उस समय है ना स्विगी पटना जैसे सिटीज में नहीं था। तो वी हैव वर्कड ऑन सर्टेन लेवल के हम लोगों ने काम किया। इवन हम लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस किया। फिर एट सर्टेन टाइम है ना जोमेटो स्विगी जस्ट स्टार्ट इंटरिंग इन आवर सिटी। हमारे सिटी में है ना जोमेटो स्विगी आने लगा। फिर हम लोगों को लगा कि कंपटीशन हम लोग है ना
उनके रहते हुए हम लोग है ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने बिजनेस मॉडल बदला। हम लोगों ने बिजनेस मॉडल क्या बदला कि हमारे पास डेटास थे, हमारे पास कनेक्शन थे, तो वी हैव स्टार्टेड किया ना। जो रेस्टोरेंट्स थे वो नए नए आए थे कि उनको भी सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ी थी उस समय है ना। आप कह सकते हो पटना और रांची जैसे सिटीज में है ना 2017 के आसपास है ना कैफे का है ना क्रेज बढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैफे रेस्टोरेंट्स नए नए स्टार्ट होना स्टार्ट कर दिए। तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना आप कह सकते हो नया कैफे या नया रेस्टोरेंट खुला है ना, तो वो बेसिकली है ना डिजिटल वे में जाएगा। तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल सॉफ्टवेयर फॉर देम। तो वहां तक हम लोगों ने वो चीज किया। फिर इसको चेंज किया हम लोगों ने, थोड़ा और बिजनेस मॉडल को चेंज करके हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी। और मार्केटिंग इट इज मार्केटिंग 360 डिग्री मार्केटिंग। लाइक कि अगर आपको बैनर लगवाना है तो वी विल put banner for you also, and we will do online marketing, we will do different types of platform based marketing। even आप अगर मान के चलो even यू गो दिल्ली, आप दिल्ली में जाते हो तो मेट्रो के आप मेट्रो से बहुत लोग है ना आप लोग है ना ट्रैवल करते हो, तो मेट्रो में आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग्स लगे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल है ना मार्केटिंग होते रहते हैं। ओके, डिजिटल बैनर्स लगे रहते हैं। या आप कह सकते हो कनॉट प्लेस जाते हो तो देयर आर लाइक कि कनॉट प्लेस के हर कॉर्नर पे है ना डिजिटल बैनर लगा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना प्रोडक्ट वहाँ पे एडवर्टाइज होते रहता है डिजिटल बैनर। सो वी डू दैट ऑल्सो। तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना कंपनीज जो कि बिहार में आना चाहती थी या बिहार में पहले से थी लेकिन है ना अपना मार्केट प्लेस से ना नहीं बना पाई, तो हम लोगों को उनके लिए एडवर्टाइजिंग और करना स्टार्ट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए करना स्टार्ट किया। और बहुत आप कह सकते हो कि एक सर्टेन स्टेज पे अच्छा बिजनेस करना, प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया। स्टार्टेड फिर 2019 में, जैसे कि मैंने बताया कि 2018-19 में स्टार्टेड राइटिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, एंड देन कि उसको फिर हम लोगों ने मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में चेंज किया और मैत्री स्टार्टेड रिकॉग्निशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, योर स्टोरी एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वी स्टार्ट गेटिंग अवार्ड कि हम लोग है ना एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ऐसा। ये सब चीज एक जीरो से लेके एक अभी तक के ना प्रोसेस पे ये सब चीज बिल्ड हुआ। Nice to see, or nice to hear that how you started your journey and how the things move on. I think we have got the question, Mr. Rohit. We can take the question, right? Yeah, sure. We have got some question from our student side. Manish Chaudhary, the same guy, he is asking. So हमें कैसे पता चलेगा कि किस point this is a point where we have to start or we have to doing more for success? सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको स्टार्ट करना है ना तो आपको डिग्री फाइनेंस या बहुत कुछ की ऐसा कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। यू नीड की एक बर्निंग डिजायर भी होता है कि हमको कुछ करना है। लाइक मैं अपने पर्सनल स्टेज पे आता हूँ। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ओके, सो आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, आई डोंट हैव दैट मच कनेक्शन। ओके, बट मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को खुद में खुद का कुछ बनना है। नॉट लाइक कि मेरे को कोई ऑफिसर बनना है या कुछ ऐसा कुछ बनना है, मेरे को बिजनेस में ही कुछ अच्छा करना था। ओके, तो फिर हुआ कि है ना कैसे अच्छा किया जाए, तो आई स्टार्टेड जस्ट बिल्डिंग कनेक्शंस नेटवर्क। क्योंकि है ना आप लाइफ में अगर कुछ भी बनना चाहो ना तो सबसे पहली बात और सबसे है ना क्या कहते हैं सबसे है ना बड़ी बात क्या होती है ना कि आपके पास प्रॉपर कनेक्शंस या नेटवर्क है कि नहीं। क्योंकि है ना ऐसा मेरा सिंपल एक लाइफ का सिंपल थ्योरी है ना, आप जिस 5 लोगों के साथ रहते हो ना उस 5 लोगों के एवरेज बनते हो। तो आप सिर्फ 5 लोगों को चुनो अराउंड यू, और इवन यू कैन चूज फ्रॉम बुक्स। अगर मान के चलो कि मेरे को बिल गेट्स को अपना है ना मेंटर बनाना, बिल गेट्स तो मेरे पास हमेशा रह नहीं सकते, तो मैं बिल गेट्स को कैसे अपना मेंटर बनाऊंगा। उनके ब्लॉग्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स उन्होंने लिखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे वो आके है ना टॉक देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। तो आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग दैट मटेरियल ओनली। तो उसके मटेरियल से मेरे को है ना बहुत कुछ सीखने की मिला। दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप शुड डू, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिग्री और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर समथिंग, या डिग्री इज इम्पोर्टेंट, MBA इज इम्पोर्टेंट, इवन BTech इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कि वो जो नॉलेज वहां से मिलता है ना वो भी आप है ना नॉलेज है ना कहीं और से नहीं ले सकते। ओके,
तो वो नॉलेज भी हमारे लिए है ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉलेज जाओ या कॉलेज में सीखो, बट आप है ना उस प्रॉपर आप कॉलेज के साथ साथ क्या करो कि नेटवर्क बनाना भी बिल्ड करो। मैंने आई जस्ट वेंट टू नोएडा, नोएडा में मैं एक कॉलेज में गया। तो कॉलेज तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द, आप कह सकते हो बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, बट वहां पे कॉलेज में मैंने देखा कि मुश्किल से है ना 2000 बच्चे कॉलेज में है, पूरे कॉलेज में, लेकिन मुश्किल से 10 या 15 बच्चे है ना ऐसे होंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में है ना इंटरेस्टेड होंगे, या वहाँ के जो इंक्यूबेशन क्या कहते हैं कि इंक्यूबेशन हब है या इंक्यूबेशन का है ना जो स्टार्टअप के लिए है ना उन्होंने बनाया है उसका प्रॉपर यूज कर पाए होंगे। तो दैट्स अ थिंग। लेकिन आइडियाज तो सबके पास है, बहुत लोगों के पास। मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे ना जो कि मेत्री में ऑलरेडी है ना दे आर स्टडिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, बट दे डोंट नो कि उनके कॉलेज में खुद का एक इंक्यूबेशन हब है या स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो दैट्स अ थिंग। वो चीज कब आएगा, वो क्या कहते हैं अवेयरनेस कब आएगा, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिलोगे। मान के चलो कि आप मेत्री में आओगे तो आपको पता चलेगा कि है ना ऐसे वैसे स्कीम भी होते हैं कि मैं इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, इसके लिए मेरे को क्या कहते हैं खुद का पैसा लगाने का जरूरत नहीं है, आई कैन गेट इजिली फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। तो दैट्स अ थिंग। आप नेटवर्क बिल्ड करो। अगर आप कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिग्री तो सारे कोई कर रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा करिकुलर क्या कर रहे हो। तो नेटवर्क बिल्ड करो लोगों से, अपने जो आपके फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, अगर डिजाइनिंग में आपको कुछ करना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड प्लेयर्स इन डिजाइनिंग की, जो डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे बात करो, उनके ब्लॉग्स को रीड करो, उनसे पर्सनली मिलने का है ना वो करो। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि मान के चलो कि है ना कि ऐसे पर्सन से मैं कैसे मिल पाऊंगा, ही इज अ मिलियनर और बिलियनर। ओके, जस्ट स्टार्ट इनिशिएटिंग। 10 अच्छे डिजाइनर है ना, 10 अच्छे डिजाइनर को आप इनिशिएट करो। अगर मान के चलो 9 नहीं मिलेंगे लेकिन 10वां आपसे मिल लेगा, 10वां आपसे ईमेल पे या है ना फोन पे बात करना, आपके ईमेल को या फोन को रिप्लाई कर देगा। दैट्स अ थिंग। जब तक आप ये खुद में वो नहीं लाओगे ना कि मेरे को करना है, एक बर्निंग डिजाइनर खुद में नहीं लाओगे ना, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अभी भी मेरे को है ना ऐसा लगता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत लोग हैं ना, दे आर नॉट रेडी टू टॉक विथ अस। ओके, दे आर नॉट रेडी टू कम विथ आवर प्लेटफॉर्म, बट वी आर जस्ट इनिशिएटिंग। ये बंदा नहीं आ रहा है तो मैं सेकेंड बंदा के पास मूव ऑन करूँ, ये नहीं आ रहा है तो थर्ड के पास मूव ऑन करूँ। फर्स्ट नहीं होगा सेकेंड होता है, सेकेंड नहीं होता है थर्ड होता है। तो दैट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज नॉट कि एक सिंपल सा कोट है। अब अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ करना चाह रहे हो तो एक लाइफ का एक कोट याद कर लो, स्टार्टअप इज द जर्नी ऑफ 100 स्लैप्स। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टअप है ना 100 थप्पड़ का है ना एक जर्नी है, 100 स्लैप्स का। 100 थप्पड़ आपको कोई थप्पड़, दे आर नॉट जस्ट कम एंड स्लैप्स यू, इवन रिजेक्शन इज ऑल्सो अ स्लैप। तो जस्ट गेट रेडी टू फेस 100 रिजेक्शन और 100 स्लैप्स। कि आप 100 रिजेक्शन को जब फेस करना है ना, सोच लोगे कि मेरे को 100 रिजेक्शन फेस करना है, तो जस्ट बी रेडी फॉर स्टार्टअप। ओके। Yeah, I think Manish has got the answer. और इसी कड़ी में मैं भी एक I just wanted to put my view what Mr. Rohit has told, that networking is very important for becoming a successful in your life. To be successful, I think networking plays a very important role. One of a very well-known professor from Singapore University, when I met with him, then I have told to him that, sir, you are a very popular guy, one of the uh, topmost educationalist. So I think this is all about you. Then the reply of him was that why I'm on this position, why I'm getting invitation from all over the world, because of the not networking, not because of the my teaching aptitude or my knowledge. Because my relations, what I have, that is all because of the relation. I get a call from everybody, and then I'm also among you. So networking plays a very important role to become a successful in your life. Definitely, it's the right concept and a theory. So I think everybody has to follow. One more question I have got from Prem Tamanna. How did you start your journey? How you recognized by the UN? What did you do to achieve your success?
ओके तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अबाउट इट कि हम लोगों ने ऑन स्टार्टअप में है ना बिल्डिंग स्टार्टअप बिल्डिंग का एक है ना मेत्री स्कूल के अंदर वी स्टार्टेड बिल्डिंग स्टार्टअप वी स्टार्टेड हेल्पिंग सो वन ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने है ना करमवीर चक्र का है ना हर ईयर है ना वो नॉमिनेशन आता है तो ही जस्ट फिल्ड फॉर्म कि हमारे लिए फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया अपना है ना क्या कहते हैं नॉमिनेट कर दिया one of the student and they liked about us कि हम लोग क्या कर रहे हैं they researched about us and they just called us कि we selected you to give this award and you can come on this date वो 12 अक्टूबर था 12 अक्टूबर is my 18th birthday okay मेरा 12 अक्टूबर को बर्थडे भी था and I just turned 18 on 12 October so we just went to IIT Delhi to receive that award and it is recognized by United Nations that's One more question which I have got from Mohammed Aisha. What are the top 5 suggestions you would like to give for a new startup in 21st century? Okay, so what are my top 5 suggestions? First thing is मैंने already कह दिया network. Okay, without network से ना आपको इंडिया में एक रुपए की फंडिंग मिलेगी और ना कोई सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट अगर आप किसी भी फाउंडर या किसी भी एंटरप्रेन्योर से अगर जाके मिलते हो जस्ट वॉच अनअकैडमी का केस स्टडी पढ़ो अनअकैडमी क्यों सक्सेसफुल है नॉट बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट ये अनअकैडमी ने कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना लिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट एंड लाइक उनसे अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं बट व्हाई अनअकैडमी इज that much funded because Gaurav Munjal is already in startup field and he had a good network okay so if you are just starting in entrepreneurship or in any field अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना तो आप नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट कर लो फर्स्ट सजेशन मेरा नेटवर्किंग रहेगा सेकेंड सजेशन क्या रहेगा डोंट स्टार्ट फॉर अवार्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन ओके कि ये प्रोसेस का पार्ट है लाइक कि आप देखोगे कि है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है एक्ट्रेस है आप देखो टॉम क्रूज को देख लो हिज अ टॉप आप कह सकते हो टॉप एक्टर बट ही डोंट गॉट आप कह सकते हो ऑस्कर उनको नहीं मिला बट ही इज स्टिल मोर देन ऑस्कर ही इज स्टिल मोर फेमस इन वर्ल्ड than any other actor okay so that's the thing कि आप है ना अगर स्टार्टअप फील्ड में स्टार्ट करो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो ना तो डोंट गो फॉर आपको है ना अवार्ड मिले या डोंट गो फॉर कि है ना आपको कोई है ना अप्रिशिएट करे जस्ट आपका पैशन है मेरे को स्टार्टअप करना है एंटरप्रेन्योरशिप में करना है मेरे को डिजाइनिंग करना है मेरे को एक्टिंग करना है जस्ट स्टार्ट की है ना मेरे उस चीज के लिए स्टार्ट कीजिए हो सकता है कि अवार्ड आपको अवार्ड मिले हो सकता है आपको अवार्ड नहीं मिले जस्ट लाइक कि टॉम क्रूज को अवार्ड नहीं मिला जस्ट लाइक कि है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमिताभ बच्चन को देख लो कि ही इज आप कह सकते हो कि बिगेस्ट एक्टर इन इंडिया बट ही डोंट येट गॉट ऑस्कर एंड बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिन उनको नहीं मिला so that's the thing don't go for awards and don't go for recognition the third thing की है ना आप अगर मान के चलो स्टार्टअप में कुछ करना चाह रहे हो तो बी अवेयर अबाउट टेक बहुत लोगों को मैंने देखा है कि टेक को है ना बहुत लोग है ना क्या कहते हैं कि अंडररेटेड ले लेते हैं अंडररेटेड लेने का मतलब क्या है कि उनके पास आइडिया रहता है वो समझते हैं कि दे विल हायर सम डेवलपर एंड गेट इट इनिशिएटेड यस यू कैन गेट इट इनिशिएटेड कि आप किसी से ऐप डेवलप करवा लो किसी से कुछ डेवलप करवा लो बट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि है ना आपको है ना कोई चीट नहीं कर पाए यू हैव टू हैव सर्टेन नॉलेज अबाउट कि है ना आप ऐप बनाना है या वेबसाइट बनाना है या सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना है प्लेटफॉर्म बनाना है थोड़ा सा आप खुद क्या कहते हैं रिसर्च करना स्टार्ट करो थोड़ा सा है ना आप खुद पढ़ना स्टार्ट करो बिकॉज कि एंटरप्रेन्योर का ऐसा नहीं होता है ना कि आप फाइनेंस में ही हो तो आपको फाइनेंस ही करना है या फाइनेंस ही आपको है ना ऑल लाइफ करना है दे आर लाइक की है ना दे आर लाइक की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मार्क जकरबर्ग का एग्जांपल ले लो मार्क जकरबर्ग इज लाइक कोडिंग ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस बट अब वो कोडिंग करते ही नहीं है फेसबुक के लिए ओके लाइक ही जस्ट कि वो अपने बिजनेस पे फेसबुक कैसे स्केल कर रहा है फेसबुक कैसे न्यू प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर रहा है या कैसे है ना क्या कहते हैं कि अपने है ना न्यू प्लेटफॉर्म को है ना प्रोडक्ट को चेंज करना उस पे है ना वो ध्यान दें दैट्स द थिंग अगर आप है ना कंटिन्यूसली अपने आप में चेंजेस ग्रैब करो नए चीजों को सीखो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलॉन मस्क को बहुत लोग है ना अपना है ना क्या कहते हैं बहुत लोग एंटरप्रेन्योर
ही इज अ गॉड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बहुत लोगों को है ना कि वो मोटिवेट करते हैं। बट इलॉन मस्क की केस स्टडी जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि है ना क्या कहते हैं कि उनको जब भी कुछ स्टार्ट करना रहता था ना, इवन ही स्टार्टेड स्पेस एक्स, तो ही ग्रैब ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कि स्पेस एजेंसी कैसे वर्क करती है, स्पेस क्या कहते हैं रॉकेट कैसे वर्क करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग उन्होंने है ना इस बिजनेस के बारे में जाना। तो दैट्स अ थिंग यू नीड टू डू कि है ना आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो पहले उस बिजनेस पे है ना नॉलेज ग्रैब करो। नॉलेज इज द बिगेस्ट एसेट। हो सकता है कि आप है ना बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि आपने किसी स्टार्टअप को स्टार्ट किया, वो स्टार्टअप सर्टेन स्टेज में जाके फेल हो जाती है, बट आपके पास अगर नॉलेज रहता है ना तो आप किसी और स्टार्टअप में जाके आपको है ना हायर किया जा सकता है। आप एग्जांपल ले लो राहुल यादव। राहुल यादव इज वन ऑफ द लाइक आप कह दो कि प्रीमियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उनको एक समय तो एंटरप्रेन्योरशिप का आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर में बहुत जाने पहचाने लोग थे। राहुल यादव इज अ प्रोडक्ट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को ड्रॉप आउट करके हाउसिंग.com में स्टार्ट किया था। हाउसिंग.com इट इज लाइक 4-5 years back, it is a like renowned startup of India and he's a poster boy of Indian startup। and that Rahul Yadav same कि उन्होंने है ना like 200 या 300 करोड़ के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने है ना एम्प्लॉयज को है ना ऐसे ही डोनेट कर दिए। But now what Rahul Yadav is doing, he's working for a real estate startup nowadays, okay, and that type of startup. So that's the thing, he had a knowledge about that sector, and now he is working in same startup and sorry different startup in same domain। that's the thing you need to do कि आप है ना मान के चलो कि है ना फ्री चार्ज का एग्जांपल ले लो। कुणाल शाह स्टार्टेड फ्री चार्ज, बट आप वो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना फिनटेक स्टार्टअप के लिए ही काम कर रहे हैं। ओके, सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है तो नॉलेज आपको शेप करेगा, और हो सकता है फ्यूचर में आप उसी सेक्टर में स्टार्टअप स्टार्ट करो या किसी स्टार्टअप के लिए वर्क करो। तो नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाओगे ना, आप दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते स्टार्टअप के। तो फर्स्ट सजेशन वॉज की नेटवर्क, सेकेंड सजेशन वॉज की नॉलेज को है ना ग्रैब कीजिए। ओके, तो ये सब कुछ चीजें होते हैं कि आप की जाए स्टार्टअप के फील्ड में। अवार्ड्स के लिए नहीं चाहिए। फोर्थ सजेशन क्या हो सकता है कि है ना मनी के लिए स्टार्ट नहीं कीजिए। हो सकता है कि आपको है ना उतने ज्यादा पैसे नहीं मिले। लाइक एग्जांपल लीजिए पेटीएम का। पेटीएम लाइक एट सर्टेन स्टेज की है ना पेटीएम का इतना बुरा हाल था ना कि वो 8 लाख रुपीज के है ना फंडिंग के लिए है ना उन्होंने ना 40% इक्विटी दे दी। तो दैट्स द थिंग यू नीड टू डू दैट। ओके, कि आपको है ना एक ऐसा बुरा समय आएगा ना कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होगा, आपका बहुत बुरा हाल होगा। तो स्टार्टअप फील्ड में ऐसा होता है बहुत बार, बहुत सारे स्टार्टअप के साथ एंटरप्रेन्योर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो डोंट गो फॉर मनी एंड ऑल। एंड लास्ट सजेशन की प्रोडक्ट अच्छा बिल्ड कीजिए। आज हो सकता है कि आज मार्केटिंग की वजह से आप मार्केट में चल जाए थोड़े दिन, लेकिन आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा ना तो लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गिव टाइम टू योर प्रोडक्ट, गिव टाइम टू योर कस्टमर। उनसे कस्टमर का आप कह सकते हो कि कस्टमर इज द बिगेस्ट फ्रेंड। वो आपको है ना जितना सजेशन दे सकता है ना उतना ग्रैब कीजिए और अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से इनोवेट करते रहिए, चेंजेस लाइए। आज अपने है ना जो प्रोडक्ट बनाए होंगे इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। तो दैट्स 3-4 आप कह सकते हो या 5 थिंग्स यू नीड टू डू टू गेट स्टार्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज प्रोडक्ट सबसे बड़ा एसेट होने वाला है। और आप कह सकते हो कि इट इज अ 21st सेंचुरी। पहले क्या था, आज से 30-40 साल पहले कोई भी प्रोडक्ट बना दो आप अब खुद से ही है ना लोग है ना अपना है ना क्या कहते हैं कि रिव्यू डाल देते थे, फेक रिव्यूज डाल देते थे। आज आप गलत प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई आपके बारे में है ना ट्विटर पे डाल देगा, फेसबुक पे डाल देगा, फोरा पे लिख देगा कि यू आर मेकिंग क्या कहते हैं कि रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आई एम गिविंग यू जस्ट अ केस स्टडी ऑफ अ पर्सन। ही इज लाइक रियोन्ड, आप कह सकते हो कि रियोन्ड टॉपर, बट कि उनका है ना उन्होंने है ना लाइक कि ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड गेट प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ पर कस्टमर को कन्वर्ट करना। प्रोडक्ट उनका है ना प्रोडक्ट में बहुत सारा कह सकते हो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। नाउ पीपल आर है ना उनका है ना नेगेटिव मार्केटिंग करना। जो पीपल उनके बारे में अप्रिशिएशन करते थे वही उनके बारे में नेगेटिव लिख रहे हैं। तो दैट्स द थिंग कि आज के जमाने
में आप किसी को है ना चीट कर सको, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ओके, सो मेक अ गुड प्रोडक्ट, गिव टाइम टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर को आज हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बट लॉन्ग टाइम में इट इज गोइंग टू बी अ, आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा होगा लॉन्ग टाइम के लिए। I think it was a very good suggestions. That 5 suggestions which was given by Mr. Rohit. One is networking. Second, the quality of the product. Third is don't go for the awards. And I think fourth is the knowledge, right? And the fifth one, I think it was related with the quality of the product or the don't go with the money, right? Yeah. So these all suggestions are really very nice, and I think if somebody has to be successful in the entrepreneurship, they have to follow in this 21st century, and I think they'll be successful. Mm, some more question we have got. How did you build a team excluding friends and relatives? ओके, सो इट इज आप कह सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड बहुत लोगों को है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो आजकल क्या है कि आजकल है ना सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म का है ना, आप क्या कह सकते हो कि है ना एक तरह से जमाना है, आप कह सकते हो। सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग फाउंडर्स एक्टिव है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जस्ट बी एक्टिव देयर। ओके, अगर आपको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में आज के ज़माने में कुछ करना है तो लिंक्डइन या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो, कंटिन्यूसली अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, चेंजेस के बारे में है ना कंटिन्यूसली लिखते रहो। मैं आपको है ना एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड की है ना, उन्होंने है ना सिर्फ वन प्लस के लिए कुछ सजेशन दिए थे। वन प्लस रिसेंटली वाज इन मार्केट। ओके, सो उन्होंने है ना वन प्लस के सीईओ ने क्या किया कि जस्ट पुट की है ना, उन्होंने है ना अपने फोन के बारे में डाला, इस पे सारा डिटेल्स डाला कि हम लोगों ने ऐसा फोन लॉन्च किया है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी कैन मेक। ओके, सो उस फ्रेंड ने क्या किया कि ना कुछ 3-4 सजेशन दिए, एंड ही इज हायर्ड बाय वन प्लस। ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी हैपन कि अगर आप है ना सोशल मीडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहोगे ना, तो यू विल मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। और जो भी आज हमारी टीम में 90% ऐसे लोग हैं ना, दे आर ऑल की है ना, उनको हम लोगों ने सोशल मीडिया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म से दे जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर अस एज अ इंटर्न। now they are like full-time employee or maybe equity partner in our स्टार्टअप। सो जस्ट हायर किया ना, ऐसा कुछ हायर नहीं करो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज को ही हायर कर दो। फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर करोगे तो यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा मनी। और हो सकता है कि फुल टाइम एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि स्टार्टअप फील्ड में वो उतने ज्यादा है ना हेल्पफुल नहीं होते हैं, उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। बट आप इंटर्न्स को हायर करोगे, दे आर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर एक्साइटेड टू ग्रैब नॉलेज, दे आर एक्साइटेड टू बिल्ड देयर portfolio. Okay, so they will work hard for you and they will work for low cost. Okay, so just there are different types of internship platform, उनको ट्रेन करो, उनको अपने अंदर लाओ। और सबसे 3 चीज क्या है ना ध्यान रखो, आप है ना किसी टीम बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहला चीज है ना गो फॉर ऑनेस्टी। ओके, गो फॉर हार्ड वर्क, गो फॉर पैशन। ये 3 चीज के लिए जाना है। ऑनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टार्टअप में हो सकता है कि आपको, अगर मान के चलो आपने किसी फाइनेंस के बंदे को हायर किया, आपको फाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता होगा, तो ही मे चीट यू अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहा। अगर ऑनेस्ट रहा तो वो है ना आपको चीट नहीं करेगा, बिकॉज स्टार्टअप में आपको उतना नॉलेज नहीं होता है स्टार्टिंग में सारे चीज के बारे में। आपको हो सकता है टेक के बारे में उतना नॉलेज नहीं हो, आप हो सकता है प्रोसेस में सीख जाए, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में लॉसेस हो। ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग इज गो फॉर ऑनेस्टी। सेकेंड थिंग हार्ड वर्क। अगर वो टैलेंटेड भी नहीं है ना, अगर वो हार्ड वर्क जानता हूँ, मैं अपने एक वनडे का एग्जांपल देता हूँ। ही इज वर्किंग एज अ चीफ ऑफ टेक इन आवर वन ऑफ द स्टार्टअप। तो ही जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंटर्न, और उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं था, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट उसके पास एक चीज था ना कि उसको जो भी चीज करो, उसको एक चीज बता दो कि यू नीड टू लर्न अबाउट कि ना कैसे इंटीग्रेट करते हैं पेमेंट गेटवे,
या आप कह सकते हो कि कैसे है ना नए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को ऐड करते हैं, या कैसे नए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ इतना मैं बता देता था, इतना गाइड कर देता था कि जस्ट लर्न, वो कुछ ही दिन में वो पूरा चीज लर्न करके वो काम कर देता था। तो ही हैड वन थिंग दैट इज हार्ड वर्क, दैट इज ऑनेस्टी। ओके, सो और थर्ड थिंग इज पैशन। पैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पैशनेट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, वो पैशनेट होना चाहिए आपके स्टार्टअप के लिए। लोग है ना पैशनेट नहीं होते हैं फील्ड के startup के लिए, वो लॉन्ग टाइम उनको आपका हो गया ना कि एक पैसे में करेगा, लेकिन वो बंदा तो एक ब्लॉक करे के पैसे भी नहीं है, बिकॉज उसको लर्न करना आता है ना, डायर था कि he wants to learn, and the second thing is that he want to grab knowledge, he want to build portfolio। so ये सब सारा चीज था। तो go for honesty, go for hard work, go for passion। he must have your some type of passion in your startup, he must be passionate about your company, he just want उनको ऐसा लगे कि ये मेरी कंपनी है। हेलो, या मिस्टर रोहित, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो, आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर ऑफ many of the questions. How to find and approach investor? One more question. थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही थी आपकी लास्ट वाले में, है ना? अभी ठीक है। How to find and approach investors? The next question, I think it will be the last one. सो इन्वेस्टर, पहले तो आप अप्रोच करने से पहले इन्वेस्टर को ये सोचो कि यू आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। मैंने पहले ही बताया था, मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करते ही मैंने है ना बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट के पास पहुंचा, इन्वेस्टमेंट टर्म के पास पहुंचा, तो मैंने सिंपल से ना वो चीज़ दिया था कि है ना कोई नहीं, मान के चलो मैं अभी आप में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इज यू आर रेडी टू यूज दैट 5 लाख रुपीज फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ और नॉट, विथ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसे स्टार्टअप नहीं चलता है। आपके पास प्रॉपर फाइनेंस मॉडल है, प्रॉपर टाइम फ्रेम है कि मैं इतने कस्टमर को एक्वायर करने वाला हूँ, इतने प्रोडक्ट को खरीदने वाला हूँ, इस टाइप का ऑफर देने वाला हूँ, इस टाइप के टाइम फ्रेम में मेरे को ये पैसा यूज करना है, ऐसे यूज करना है। तो सारा चीज, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है कि अप्रोच कैसे करें। तो अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि अगर आप फिनटेक में हो तो फिनटेक आप देखो कि है ना 50 ऐसे स्टार्टअप को स्टडी कर दो कि है ना फिनटेक वाले रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप को स्टडी कर लो। आपने नोटिस किया होगा कि है ना अगर ये एक आदमी है ना अगर फ्रीचार्ज में इन्वेस्ट किया है ना, तो ये किसी भी चीज के थ्रू है ना, ये सेकेंड फिनटेक स्टार्टअप में भी इसी ने इन्वेस्ट किया। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं ना जो कि सेम डोमेन के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कि सॉफ्टवेयर का देख लो, सॉफ्टवेयर सेम टाइप ऑफ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर देख लो कि अगर वो रियल एस्टेट स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट में ही करते हैं, अगर कोई है ना फिनटेक में इंटरेस्टेड है तो फिनटेक में ही इंटरेस्टेड है। तो आप है ना अपने जो भी क्या कहते हैं कि 50 ऐसे रिलेटेड स्टार्टअप को या 10 ऐसे 20 ऐसे रिलेटेड स्टार्टअप को फाइंड कर लो कि है ना जिसमें रिसेंटली फंडिंग हुई है, उस इन्वेस्टर को इनिशिएट करना स्टार्ट कर दो। उस इन्वेस्टर को आप मेल्स भेज सकते हो, ट्राई टू कनेक्ट विद देम लाइक कि ओवर अ कॉल, ओवर अ मीटिंग। ओके, सो दैट थिंग यू कैन डू। एंड नेटवर्किंग सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आपका अगर वन ऑफ द फाउंडर या वन ऑफ द टीम मेंबर अगर पहले ही से स्टार्टअप फील्ड में है तो उसके पास प्रॉपर नेटवर्क होंगे। आपने देखा होगा कि आपने बहुत फेमस फिल्म है स्टार्टअप की, एक फिल्म है द सोशल नेटवर्क। ओके, द सोशल नेटवर्क इसकी है ना, आपने देखा होगा कि फेसबुक कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो स्केल किया, सारा चीज है ना उस मूवी में दिखाया गया। तो व्हाई दैट मार्क जकरबर्ग वेंट फॉर शॉन पार्कर, शॉन पार्कर के पास वो क्यों गया, उस फिल्म में दिखाया गया कि शॉन पार्कर को उसने कैसे इनिशिएट किया। और शॉन पार्कर इज द वन जिसने है ना पीटर थिल जैसे इन्वेस्टर से उनको फंडिंग दिलवाई।
तो ऐसा हो सकता है आप कुछ ऐसे बंदे को अभी है ना आपको रखना पड़ सके, दैट दैट पर्सन नॉट प्ले अ मेजर रोल, वो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, बट दे विल ब्रिंग सम नेटवर्क फॉर यू, दे विल ब्रिंग सम एक्सपीरियंस फॉर यू। तो जैसे स्टार्ट एक्वायरिंग सम एक्सपीरियंस, सम नेटवर्क। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट किसने स्टार्ट किया? सचिन बंसल बिन्नी बंसल ने। सचिन बंसल बिन्नी बंसल वाज एक्स एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन, अमेजोन कंपनी के वो एक्स एम्प्लॉय थे। So he had a experience in that domain, he had a connection in that domain, so that plays a major role। आज राहुल यादव दूसरी कंपनी में, उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो राहुल यादव की है ना कनेक्शंस मैटर कर रहे हैं। शॉन पार्कर की कनेक्शंस फेसबुक को हेल्प किया, पीटर थिल के कनेक्शंस आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप को हेल्प कर रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू टेस्ला। टेस्ला वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है, बट we all know कि it is not started by Elon Musk। Elon Musk को आज फाउंडर दिखाते हैं, जो भी दिखाते हो, but he was not a actual founder। Elon Musk was the initial investor। उस CEO भी है ना टेस्ला का है ना, Elon Musk नहीं थे at starting, but वो initial investor थे। उन Elon Musk के connections, vision, experience के कारण आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। तो दैट्स द थिंग, अगर आप है ना इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो तो गेट सम टाइप ऑफ पीपल हु हैड अ एक्सपीरियंस इन योर फील्ड, एंड वो आपके लिए नेटवर्क और सारा चीज है ना इन्वेस्टर है ना वो ला के देगा। और सेकेंड थिंग आप क्या कह सकते हो, जस्ट स्टार्ट इनिशिएटिंग दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर डायरेक्टली। आप 5 या 10 ऐसे स्टार्टअप को फाइंड करो अपने डोमेन में जिनको रिसेंटली फंडिंग मिली है, उनके इन्वेस्टर को आप है ना अप्रोच करना स्टार्ट करो, उनको ईमेल्स भेजो, तो वो भी काम करता है। लेकिन नेटवर्किंग, इंडिया के अंदर में 90% फंडिंग या वर्ल्ड के अंदर में 90% फंडिंग नेटवर्किंग के ही कारण है। It means if somebody has the good networking as well as the good relations, they can easily get the funding. Am I right? Yeah, It actually, was. I'm also giving you example of recently it started by MagTap. Okay, you can go learn about MagTap on different types of social platform। It is started by 3 or 4 people from Bihar itself, and like they have office in Mumbai, and like एक साल के अंदर में उन्होंने ऑनलाइन 5 या 6 लाख कस्टमर को डाउनलोड्स गूगल प्ले के ऊपर, लाइक हो सकता है 10 लाख क्रॉस करना पड़ सके, और दे आर हाईएस्ट रेटेड app on Google Play। they have a rating of 4.9। they are like highest rated। उनका प्रोडक्ट इतना ब्रिलियंट है ना, आप है ना they are like just a browser like Chrome और यूसी ब्राउजर जैसा ब्राउजर है, बट उसके साथ क्या है कि अगर आप किसी भी है ना वर्ड पे क्लिक करते हो ना तो विजुअल है ना, मान के चलो एप्पल पे क्लिक किया, एप्पल शो हो रहा है वर्ड, तो एप्पल क्या होता है और एप्पल की पिक्चर उस ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दे हैव दैट यूएसपी। ओके, तो आप उस स्टार्टअप के बारे में जाके है ना पढ़ सकते हो, बट उस स्टार्टअप को है ना स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले ही प्रोटोटाइप स्टेज पे ही 1 करोड़ की फंडिंग मिल गई। एंड लाइक रोहन टेकन अ क्लास ऑन लास्ट फ्राइडे, मेत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने उन्होंने क्लास ली लास्ट फ्राइडे को, तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में कि उनको 1 करोड़ रुपये का है ना एंजल इन्वेस्टमेंट मिल गया। तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि कैसे उनको है ना पैसे मिले, तो उन्होंने कहा कि वी हैव अ नेटवर्क एंड वी हैव अ रिलेशन विद इन, क्या कहते हैं, रिलेशन और नेटवर्क पहले ही से था, और हम लोगों ने जस्ट पिच किया, उनको आइडिया अच्छा लगा और दे जस्ट फंडेड इट। ओके, आप भी ऐसा सोचोगे ना कि मान के चलो कि आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन है तो आपको पहले कंसिडर करेगा। मान के चलो कि मनीष का एग्जांपल ले लो, मनीष के पास कोई आइडिया होगा तो ही विल अप्रोच मी, तो मैं पहले उसको कंसिडर करूंगा, हो सकता है मैं उस पर पहले ध्यान दूँ। तो दैट्स द थिंग, बिकॉज ही नो, वो पहले से मेरे को जानता है, मेरे साथ उसका पहले से रिलेशन है। Networking and all plays a major role in investment। Yeah, I think we have ended up with all the questions. Or one more query which we were having in our mind, Mr. Rohit, that funding is important for every startup, or without funding also the startup can be grown. No, funding is not आप कह सकते हो कि सारे स्टार्टअप के लिए The outside funding, if somebody doesn't have the huge amount of money. Yeah, I'm just saying about outside funding कि अगर आपको बूटस्ट्रैप से, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो कि आउटसाइड फंडिंग के बिना आपके, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर है
मैं क्या कहते हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनके बारे में, बट ही इज एडेड ऑन माय इंस्टाग्राम एंड जस्ट गो ऑन सर्च अबाउट हु इज द यंगेस्ट ऑन बिलियनर ऑफ इंडिया, लाइक रितेश अग्रवाल तो है ही, और एक और दो नेम है, दे आर कॉल्ड बूटस्ट्रैप बिलियनर्स, मतलब उन्होंने है ना पैसे कमाए और खुद के पैसे लगा के है ना अपने स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप किया, और रिसेंटली उनका स्टार्टअप है ना सम 5 और 6 बिलियन डॉलर में सेल आउट हुआ, एंड इट इज स्टार्टेड बाय 2 ब्रदर्स ओनली. So you can just go and Google about them. Two brothers who started a billion-dollar company. They are also called bootstrap billionaires. तो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो, बट नाउ डेज अगर आपको स्केल करना है, आपको एक अच्छे स्टेप पे पहुंचना है, तो इट इज नीडेड, बट फंडिंग इज नॉट, आप कह सकते हो कंपल्सरी नहीं होता है आउटसाइड फंडिंग. Okay. नहीं, but इसमें ऐसा भी होता है कि if you have got the funding, then you have shown some kind of dream to your investors, and if it has not fulfilled, then again the funding issue you can face also. Yeah, that's all. Right. Many of the students are also asking that how we can connect with you. The student, if they want to connect with you, how they can, you can easily accessible, and what is the best way to connect with you, so that if somebody has some more queries, they can easily ask to you on any way. I'm just giving them my Instagram ID. मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर लो, या आपको अगर ऑफिशियल कुछ पिच करना है या आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा आइडिया है, स्टार्टअप है, तो यू कैन पिच देम दैट आल्सो. हम आपका इन्वेस्टर्स वगैरह के आपके कनेक्शन या नेटवर्क चाहिए तो वी कैन आल्सो प्रोवाइड, बट आपके पास लॉजिकल कुछ आइडिया लाइक कि आपका लॉजिकल कुछ स्टार्टअप है, तो देन गो फॉर इट. ओके, ऐसे ही नहीं कि आपको कोई भी आइडिया है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ऐसे ही आ जाते हैं, सो डोंट गो फॉर इट. तो मैं ईमेल एंड इंस्टाग्राम आईडी आई एम जस्ट ड्रॉपिंग, एंड अगर आपको मेत्री के अंदर में आपको स्टार्टअप में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको जीरो से लेके स्टार्टअप के बारे में सीखना है, तो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग मेत्री वेबसाइट. आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होता है तो हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी. दे विल टेक अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, दे विल लर्न अबाउट यू, and they will finally select you in Meet. Okay. मैंने वेबसाइट एड्रेस भी चैट में ड्रॉप कर दिया, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी ड्रॉप कर दिया एंड ईमेल ड्रॉप कर दिया. One more question was asked by somebody, I think it was just scroll over, that he was telling that you have also went for the funding, or you have got the funding for your product or the services which you are offering, or it is without funding, it all developed by you. And my first that Maitri school is not got any outside funding, but my first two startup is funded. Actually, one is pharmaceutical startup, so it has got some funding from outside investor. It is also it is already in the process, or now you have not running those startups? Yeah, it is on process. Like, it is a pharmaceutical company based in Maharashtra, and we are in 2-3 states, and we are also making products for that coronavirus itself. So it is in process. Okay, very nice. So thank you, Mr. Rohit. I think we have learned many things, and the expectation what I was having before your session, I have got more than the expectation, and definitely it will be right word for you that less is more experience, rich experience, and you are having a really deep knowledge about entrepreneurship, how anybody or everybody can be successful in their life if really they want to become an entrepreneur. We have learned, or everybody, I think every audience have learned a lot by your way of wisdom, and I think now we are at a phase of ending up the session. With this, I again thank you very much behalf of whole Gitanjali group for giving us the valuable ideas to all the students on entrepreneurship, because it is a dream for everybody. Everybody want to become an entrepreneur. Everybody having many ideas in their mind, but the problem where they face, they couldn't execute the ideas into the implementation mode.
So I think by your learnings and by your guidance, now this kind of problem can be solved uh, in the mind of our students. And I think it was really a very learning kind of session for all of us. And with this, we thank you again. Any final remark if you want to give? And I think from our side, the session is at a ending phase. या श्योर ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप है ना अगर स्टार्टअप के बारे में कुछ सोच रहे हो स्टार्टअप करना चाह रहे हो ना तो मैंने जो सजेशन बताया ना दे आर ऑल प्रैक्टिकल दे आर नॉट लाइक इन पीपीटी बेस्ड ओके बहुत लोग क्या होता है ना पीपीटी की नॉलेज आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट को पढ़ सकते हो बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना कि जो स्टार्टअप चलाते हैं या उसको जानते हैं कि है ना कि फंडिंग ऐसे ही मिलता है नेटवर्क से ही मिलता है या फंडिंग है ना के लिए है ना इस टाइप की प्रोसीजर को ही अपनाने से फंडिंग मिलता है या टीम ऐसे ही बिल्टअप होती है तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू इन दिस सेशन कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रैक्टिकली कैसे होता है ओके तो पीपीटी से तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो बट वो थियोरेटिकल नॉलेज होता है इट इज़ लाइक कि आप कॉलेज में भी बहुत कुछ सीखते हो बट हर चीज़ है ना आपके लाइफ में यूजफुल नहीं होता है दैट्स अबाउट स्टार्टअप आपको जब तक प्रैक्टिकल बहुत सारी थ्योरीज आप सीख लीजिए लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल उसको है ना इम्प्लीमेंट 1 by 1 नहीं कर पाएंगे ना तब तक आपको कुछ नहीं होगा मीन्स आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक शो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ में है ना आप जाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिलिए तभी आप है ना नेटवर्क बना पाइएगा तभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा कनेक्शन नेटवर्क प्रैक्टिकल नॉलेज इट इज़ ओनली आप कह सकते हो कि 90% ऑफ लाइफ आप 90% लाइफ है ना प्रैक्टिकल नॉलेज से ही चलने वाला है स्टार्टअप प्रैक्टिकल नॉलेज से ही चलना वाला है पीपीटी से नहीं चलने वाला सो जस्ट गो इन मार्केट आपके पास कोई आइडिया है कुछ कोई प्रोडक्ट है जस्ट स्टार्ट लॉन्चिंग इट आप हो सकता है कि लॉन्च करना शुरू करो या स्टार्टअप स्टार्ट करना शुरू करो हो सकता है वो फेल हो जाएगा हो सकता है आपको फंडिंग नहीं मिलेगी हो सकता है बहुत कुछ हो लेकिन इससे क्या होगा ना कि आपको स्टार्टअप के बारे में नेटवर्क होगा नॉलेज ग्रैब होगा सारा चीज़ होगा तो इट इज़ अबाउट कि प्रैक्टिकल आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो जस्ट गो इन मार्केट सोचिए कम और इम्प्लीमेंट ज़्यादा कीजिए एंड एट लास्ट थैंक यू आप Thank you, Mr. Rohit. I think Manish Chaudhary has also given. Thank you so much, Rohit sir, because he is the main pillar. He has brought you in Gitanjali. So it is good about Manish. I would like to again congratulate and thank you, Manish, for calling us such a nice, gentle guy and a very successful entrepreneur. And thank you everybody, all the participants for attending this wonderful session. And with this, I end this session and then thanks to all. Thank you. Thank you, Mr. Rohit. थैंक यू सर थैंक यू ऑल ऑफ Thanks a यू lot.